ये स्टूडेंट्स आज हम स्टडी करेंगे पॉलीसैकेराइड्स। So polysaccharides, also known as glycans, are the naturally occurring condensation polymers made up of large number of monosaccharide units joined together through oxide bridges which are called as glycosidic linkages. Polysaccharides are not sweet in taste, so they are not sugars. They are colorless, tasteless, amorphous powders. They are insoluble in water, alcohol, and ethers. On complete hydrolysis, they form corresponding monosaccharides. इनसे ये बने होते हैं. Most common of the polysaccharides are starch, cellulose, glycogen, and the general formula of the most common polysaccharides is this C6H10O5 and di. तो एक और चीज पॉलीसैकेराइड्स के बारे में, they are non-reducing. They neither reduce tolerance reagent nor they reduce Fehling solution. Next we have starch. First हम स्टडी करेंगे बच्चे polysaccharide, that is starch. Starch is a polymer of glucose and is the most abundant source of carbohydrate in the human diet. It is a major food reserve material of plants and occurs as granules mainly in the seeds, fruits, tubers, roots of the plants. Fruits में, seeds में, tubers, roots में. तो प्लांट का ये मेन क्या है बच्चे, फूड रिजर्व मटेरियल. द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज हम करते हैं इसको आगे. द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्टार्च आर बीट, राइस, maize, potatoes, legumes, and other vegetables. For isolating starch, the plant cells are broken by grinding and then extracted with water. The extract is passed over sieves when starch granules a milky pass through as a milky liquid. This ये extraction बताई हुई है जनरल नॉलेज के लिए. This is then allowed to settle down. When starch settles, it is separated by decantation and finally dried in hot air. Properties दी हैं. They are also for general knowledge. हमने मेन जाना इसके स्ट्रक्चर्स पे. Starch granules are insoluble in cold water, but if water suspension is heated, granules swell and ultimately burst to form paste-like colloidal solution. Starch is composed of two components, and this is important point. Water-soluble component called as amylose, 20%, insoluble component called as amylopectin, 80%. Amylose give a deep blue color with iodine solution. Disappear on heating but reappears on cooling. ये बच्चे स्टार्च का टेस्ट. अमाइलोज पार्ट जो है वो आयोडीन के साथ क्या देता है बच्चे, डीप ब्लू कलर. दिस कॉन्स्टिट्यूट्स ए डेलिकेट टेस्ट फॉर स्टार्च है ना. It gives starch gives amylose part of the starch gives a deep blue color with iodine solution which disappear on heating but appear on cooling, and hence this can be used as a test for starch. Amylopectin on the other hand gives a red to purple color with iodine solution. Starch is non-reducing saccharide, neither reduce tolerance reagent nor it reduce Fehling solution. Let us come to the structure, the important part. Starch is made up of two components, amylose and amylopectin. स्टार्च दो कंपोनेंट्स का बना है बच्चे, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन. फर्स्ट हम बात करेंगे अमाइलोज की. द मॉलिक्यूलर फार्मूला अमाइलोज इज C6H10O5 N टाइम and N varies from 200 to 300 units. On complete hydrolysis, amylose gives a D plus glucose in quantitative yield. Thus, amylose is made up of only D plus glucose unit. It has been found that amylose molecule is composed of large number of D-glucose units joined by alpha glycosidic link. C1 of one is connected to C4 of the other. एक और बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि अगर आप पार्शियल हाइड्रोलिसिस करें अमाइलोज की, इट गिव्स माल्टोज. अमाइलोज की पार्शियल हाइड्रोलिसिस करें, ये क्या देता, माल्टोज. माल्टोज में बच्चे जो ग्लूकोज यूनिट्स हैं ये आप पढ़ चुके हैं. दो ग्लूको यूनिट होते, उनमें कौन सी लिंकेज होती, C1 C4 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंक. तो इससे हमें पता चलता कि जितने भी ग्लूको यूनिट्स हैं
स्टार्च के अंदर उनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो C1 C4 है। मैं आपको दिखाता हूँ बच्चे डायग्रामेटिकली इसको देखें। ये आप जानते हैं कि दिस इज अल्फा ग्लूकोज। मैं अल्फा ग्लूकोज का यहाँ बच्चे स्ट्रक्चर लिख रहा हूं, पायरनोज फॉर्म। पायरनोज फॉर्म को मैं लिखने जा रहा हूं बच्चे। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पायरनोज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। पायरनोज का मतलब 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर, पायरनोज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ये बच्चे पायरनोज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है, यानी कि 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है बच्चे। अब इसी को मैं, ये अल्फा फॉर्म मैंने ड्रा की, इसी को मैं हावर्थ फॉर्म में बच्चे देने जा रहा हूं। हावर्थ फॉर्म, इसी को हावर्थ स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा ग्लूकोज। दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज 2 3 4 5। कार्बन नंबर 1 2 3 4 5। हावर्थ प्रोजेक्शन जब हम ड्रा करते हैं कैसे करते हैं? जो राइट साइड पे होते हैं उनको लिखते हैं बच्चे बिलो द प्लेन, जो लेफ्ट साइड पे होते हैं OH उनको लिखते हैं अबव द प्लेन। तो आप देखिए मैं सही स्ट्रक्चर ड्रा कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5। ठीक है बच्चे। तो टर्मिनल CH2OH इज ऑलवेज अबव द प्लेन। टर्मिनल वाला हमेशा कहा होगा बच्चे ऑलवेज अबव द प्लेन, इज ऑलवेज अबव द प्लेन, टर्मिनल वाला। तो दिस इज 1 ग्लूको यूनिट। इसी तरह से मैं एक और ग्लूको यूनिट बच्चे ड्रा करूंगा यहाँ पे इसी के सामने। इसी तरह एक और मैं स्टार्च का स्ट्रक्चर ड्रा कर रहा हूं, एमाइलोज। एमाइलोज इज ए लीनियर पॉलीमर। ये बच्चे मैं स्ट्रक्चर ड्रा कर रहा हूं। अल्फा ग्लूकोज फॉर्म में ड्रा कर रहा हूं बच्चे। HOH 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 HCH2OH। दिस इज HOH HOH। ये आप देख रहे होंगे मैंने, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड है, थर्ड वाला देखिए बच्चे किधर है? इट इज ऑन द लेफ्ट साइड। तो थर्ड वाला मैंने 1 2 3, थर्ड वाला मैं किधर लिखा? अबव द प्लेन। फोर्थ वाला कहाँ पे है? राइट साइड, इट इज बिलो द प्लेन। इस तरीके से। एंड टर्मिनल इज ऑलवेज अबव द प्लेन। टर्मिनल हमेशा कहाँ होगा? अबव द प्लेन। इसी तरह से बच्चे ये आ गया आपका HOH HOH HCH2OH। ये आपका स्ट्रक्चर आ गया। अब लिंकेज कौन सी है? C1 विद C4। ठीक है, 1 2 3 4। C1 विद C4, C1 विद दिस इज 4 C4, C1 विद C4। तो यहाँ पे आपने बच्चे लिंकेज बनानी। हियर यू हैव टू फॉर्म द लिंकेज। इनको मिटा दीजिए। सामने वाले जो OH है यहाँ पे आपने लिंकेज शो करनी है बच्चे। ये देखें, ये बच्चे लिंकेज। दिस इज द लिंकेज, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ऑक्साइड ब्रिजेस जिनको हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये प्रोसेस बच्चों, ये पॉलीमर है, इट इज ए पॉलीमर, सो दिस प्रोसेस विल गो ऑन, है ना? ये चलता रहेगा इस तरह, इधर तरह इधर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइलोस। ये स्ट्रक्चर है बच्चे माइलोस। ये हमने बच्चे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज ड्रा की है। ग्लाइकोसाइडिक, कौन सी ग्लाइकोसाइडिक? अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। दिस इज अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो ये सारी अल्फा ग्लाइकोसाइडिक, बिकॉज वी हैव टेकन द अल्फा ग्लूकोज। कौन सी ग्लूकोज ली है हमने बच्चे? अल्फा ग्लूकोज। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट? ये है स्ट्रक्चर बच्चे अमाइलोज का। ये देखें, ड्रा किया होगा यहाँ पे, ये देखिए। हालांकि यहाँ पे जो दिखाया है बच्चे थोड़ा सा सीधा दिखा दिया है, तो लेकिन लिखा हुआ है सही तरीका वही जो मैंने आपको दिखा दिया। थोड़ा लिखा हुआ है यहाँ पे C1 C4। ये देखिए अल्फा लिखा हुआ है वर्ड। अल्फा का मतलब है कि इट इज बिलो द प्लेन।
आप उसी को ड्रा करें जो मैंने आपको ड्रा करके दिखाया। ठीक है बच्चे, ईच अमाइलो चेन हैज ए टर्मिनल रिड्यूसिंग ग्लूको यूनिट। एंड में जाके मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज करें ये चेन का एंड है, सपोज करें दिस इज द एंड ऑफ चेन, सपोज करें ये चेन का एंड है। एंड वाला यूनिट जो होगा वो बच्चे एक ही होगा, वो एंड। दिस इज द एंड ऑफ अमाइलो चेन। चेन इधर को ग्रो कर 200 से 300 इसमें आपने देखा ग्लूको यूनिट होते, मैंने तो 4 ही ड्रा किए। तो ये इसका एंड है। एंड वाला ग्लूको यूनिट जो है वो हेमी एस्टर फॉर्म में होगा। ये एंड वाला है, ये हेमी एस्टर फॉर्म में होगा, मतलब ये रिड्यूसिंग होगा। लेकिन अब 300 ग्लूको यूनिट में से 299 का हेमी एस्टर ग्लाइकोसाइड लिंकेज बना रहा है, 299 का सिर्फ एक का फ्री है, तो इससे कोई फर्क नहीं ना पड़ेगा। ओवरऑल जो आपका माइलोस है वो क्या होगा, नॉन रिड्यूसिंग। दिस विल बी ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है ना। तो ईच माइलोस हैज ए टर्मिनल reducing glucose unit. Since this unit is present at the end of long chain, so its properties are masked. इसकी प्रॉपर्टी जो है वो कवर अप हो जाएगी, ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। 300 में से एक ग्लूकोज है जिसका C1 फ्री है। Therefore, amylose does not exhibit strong reducing properties of sugar. X-ray analysis has revealed that amylose chain is not linear but gets coiled to produce a helical. हाँ, हेलिकल स्ट्रक्चर जरूर है इसका, हेलिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करती। इट फॉर्म्स ए कॉइल, स्पाइरल के स्पाइरल हो जाती। ईच टर्न ऑफ हेलिक्स कंप्राइजेस ऑफ अबाउट 6 to 7 ग्लूको यूनिट। The blue color produced when iodine solution is treated with starch is due to formation of an inclusion complex in which iodine molecules are trapped along the axis of the helix। जो आयोडीन है बच्चे, जो एक्सिस ऑफ द हेलिक्स यहाँ पे बीच में ट्रैप हो जाती है, इसके बीच में। ओवरऑल मतलब ये हुआ कि काइल्ड है बट रहेगा स्ट्रेट ही, काइल्ड जरूर है, हेलिकल फॉर्म में है बट रहेगा स्ट्रेट ही। तो दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, अमाइलोज। नो सेकंड इज अमाइलोपेक्टिन। अब बात करते हैं बच्चे अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन में देखें बच्चे, ग्लूको यूनिट्स का नंबर जैसे इसमें 200 to 300 है, इसमें 1000 to 3000 है। 20% of the starch is amylose, 80% of the starch is amylopectin। मॉलिक्यूलर फार्मूला वही है, C6H10O5 टाइप। अमाइलोज को जब आप हाइड्रोलाइज करो आपको क्या मिलता है, ग्लूकोज। अमाइलोपेक्टिन को भी जब आप हाइड्रोलाइज करो बच्चे, ये भी क्या देता, ग्लूकोज। इसका मतलब साफ है कि अमाइलोपेक्टिन भी किसका बना है, ग्लूकोज का। अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन में एक फर्क है बच्चे, वो क्या है, इट इज हाईली ब्रांच्ड। जैसे उसमें ब्रांचिंग नहीं है, उसमें चेन्स है, straight chains which are coiled around themselves to form a helical structure. Linear chains हैं but coiled around themselves to form a helical structure. जो amylopectin है इसमें ऐसा नहीं है, it has branched structure, large number of branches होती है इसमें, several hundred branches, large number of branches are there of short chain। एक ब्रांच में बच्चे 20 to 25 ग्लूको यूनिट होते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है ये मैं आपको दिखाता हूँ। लेट अस सी द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइलोपेक्टिन। अब मैं बात कर रहा हूं बच्चे अमाइलोपेक्टिन की। विद इन द चेन मैंने कहा कि इसमें क्या होता है बच्चे कि 20 to 25 ग्लूको यूनिट्स, 20 टू, एक चेन में 20 to 25 ग्लूको यूनिट्स होते हैं ना। विद इन द चेन, अगर हम चेन की बात करें, विद इन द चेन द ग्लूको यूनिट्स आर जॉइंड थ्रू C1C4 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। मतलब वही स्ट्रक्चर होता है जो अमाइलोज में होता। इसी तरह से ये बच्चे कंटिन्यूटी है। अब ये बच्चे आगे दूसरी चेन। पॉइंट ये है कि हाउ द चेन्स आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। चेन आपस में इंटरलिंक कैसे होती, दिस इज द पॉइंट। पॉइंट ये है अब कि हाउ द चेन्स आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। एक दूसरे के साथ बच्चे चेन्स कैसे इंटरलिंक होती। तो कहता है टर्मिनल ग्लूको यूनिट। एक चीज आपने नोट की बच्चे, यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर को देखो आप, अमाइलोज के टर्मिनल ग्लूको यूनिट का C1 फ्री है। तो इसका मतलब इस चेन का भी, अमाइलोपेक्टिन में
ईच चेन कंसिस्ट ऑफ 20 to 25 ग्लूकोज। जैसे इस चेन में कितने यूनिट्स है 20 to 25, इस वाली में भी कितने होंगे बच्चे 20 to 25। इसका जो टर्मिनल ग्लूको यूनिट है उसका C1 फ्री होगा। C1 of the terminal glucose unit is linked to C6 of any of the glucose unit of the other chain। C6 of any of the glucose unit जो उसके सामने आएगा, C6 सबका फ्री है, दिस इज 6, C6 सबका फ्री है बच्चे। तो C1 C6 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, तो जो चेन का आपस में इंटरलिंकिंग है, चेन का आपस में, दैट इज थ्रू C1 C6। इसी तरह से बच्चे मैं दिखाता हूं आपको, ये नेक्स्ट चेन आ गई आपकी, दिस इज द नेक्स्ट चेन, ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, तो इसमें इतने ही है, बाकी सारी चेन इधर है। C1 विद C6, C1 विद C6, इसका C6 इसका C1। टर्मिनल ग्लूको यूनिट का C6 is linked to C1 of the terminal glucose unit is linked to C6 of the any of the glucose unit of the other chain। फिर से इसको ड्रा करके दिखाता हूं बच्चे जिसको नहीं पता चला हो, ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, ये बच्चे एक चेन आ गई। इसमें याद रखिए मैंने 5 शो किए हैं, there are 20 to 25 glucose units within the chain। बॉन्डिंग इज सेम एज दैट इन अमाइलोज, दैट इज C1 C4। ये बॉन्डिंग कौन सी है बच्चे C1 C4, और वो भी कौन सी अल्फा। ये दूसरी चेन आ गई बच्चे, दिस इज द सेकंड चेन। दिस इज द थर्ड चेन, द थर्ड चेन, एंड सो ऑन, several hundred of the such chains, several hundred। एक चीज आप देख लें बच्चे, several hundred of such chains, ऐसी 100 चेन्स होंगी, क्योंकि आप देखें कि इसमें 1000 से 3000 तक ग्लूको यूनिट्स होते हैं। एक चेन में कितने 20 से 25, तो 20 या 25 से 1000 को डिवाइड कर लो, आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी चेन होगी, है ना। तो अब मैं बात कर रहा था बच्चे कि आपस में चेन का लिंकिंग कैसे है। टर्मिनल ग्लूको यूनिट का C1 एनी ऑफ द ग्लूको यूनिट ऑफ द अदर चेन का C6 से लिंक्ड है। तो C1 ऑफ टर्मिनल ग्लूको यूनिट is linked to C6 of the adjoining glucose chain by alpha glycosidic linkage। इसी तरह इसका इसके साथ होगा, टर्मिनल का होगा, याद रखना, टर्मिनल ग्लूको यूनिट का C1 with C6 of the adjoining glycosidic adjoining this मोनोसैकेराइड यूनिट्स की जो चेन है, एडजाइनिंग पॉलीसैकेराइड चेन जो है 20 to 25 ग्लूको यूनिट की, उसके C6 से जुड़ा होगा थ्रू अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंक। तो ये किससे जुड़ा होगा, ये इसका टर्मिनल है, तो इसका टर्मिनल नेक्स्ट चेन जो होगी उसके बच्चे किसी भी ग्लूको यूनिट के C6 से जुड़ा होगा, किसी भी ग्लूको। C6 सबका फ्री है, ये दिखाया मैंने, C6 सबका फ्री है, मतलब विद इन द चेन स्ट्रक्चर इज सेम एज दैट ऑफ अमाइलोज। इसमें फर्क इतना है कि जो आपका अमाइलोज है उसमें ब्रांचिंग नहीं है, इसमें ब्रांचिंग है, इट हैज द ब्रांचिंग, इट इज ए हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर। ठीक है बच्चे, ये था बच्चे स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट अमाइलोपेक्टिन। नाउ वी विल गो टू द सेलुलोज। ये बच्चे दिखाया हुआ विद इन द चेन C1 C4 एंड बिटवीन द चेन C1 C6, ये टर्मिनल ग्लूको यूनिट दिखाया ये वाला। तो ये है। अब बात करते हैं बच्चे सेलुलोज की। Cellulose is widely distributed in nature and serves as a structural material of cell wall in plants, providing structural strength and rigidity to plants. It is also chief component of cotton, wood, and jute. Properties: cellulose is colorless, tasteless, fibrous solid
which is insoluble in water. However, it dissolves in ammoniacal copper hydroxide solution, from which it can be precipitated by addition of acids. This property used in manufacture of artificial silk from cotton. Cellulose is also non-reducing polysaccharide like starch. It neither reduces tolerance region nor Fehling solution. It does not form osazone. In contrast to starch, cellulose does not undergo hydrolysis easily. However, on heating with dilute H2SO4 under pressure, it gives D-glucose. Concentrated sodium hydroxide acts on cellulose to form gelatinous mass, which gives silky luster to cotton. This process is known as mercerization, and the cotton thus treated is termed as mercerized cotton. अगर हम इसको NaOH से ट्रीट करें तो कहता है जिलेटिनस मास बनाता जो सिल्की लस्टर देता कॉटन को, सिल्क जैसी चमक देता कॉटन को, और प्रोसेस को कहते हैं मर्सराइजेशन। ये था इसके बारे में जनरल नॉलेज आपके लिए। अब बात करते हैं बच्चे स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर इसका बच्चे बड़ा आसान है, इसमें दो चेन्स नहीं है, इसमें एक ही चेन है। वो आपको दिखाते हैं कि इसकी चेन कैसे बनी। लेट अस शो यू। इसको पहले मिटा देते हैं। जैसे टॉर्च में दो कंपोनेंट्स हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इट हैज ओनली वन कंपोनेंट। अब इसका फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है? जब आप बच्चे सेलुलोज को पार्शियली हाइड्रोलाइज करो, सेलुलोज को पार्शियली हाइड्रोलाइज करो, इट गिव्स सेलोबायोस। ये सेलोबायोस देता। सेलोबायोस में लिंकेज है C1C4 बीटा। इसका मतलब साफ है कि जो ग्लूकोज यूनिट्स हैं सेलुलोज में, जो ग्लूको, ये भी ग्लूकोज का बना है, इसका फार्मूला भी C6H10O5N टाइम है। इसमें जो ग्लूको यूनिट्स हैं उनमें लिंकेज है C1C4 बीटा। स्टार्च में थी अल्फा, इसमें है बीटा। ठीक है बच्चे, तो यहां पे आपने पहले डिफरेंस लाना। पहले तो आपको ग्लूकोज को बीटा फॉर्म में ड्रा करना पड़ेगा। दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस जो हमें यहाँ पे लाना पड़ेगा। दिस इज बच्चे बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। इसका मतलब जितने भी ग्लूको यूनिट है सारे बीटा फॉर्म में है, उसी में बच्चे पहले चेंज लाते हैं। मतलब अगर आपको स्टार्च का स्ट्रक्चर आता है तो बच्चे सेलुलोज का स्ट्रक्चर ड्रा करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आपने क्या करना है कि C1 की आपने कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी है, इसको बीटा फॉर्म में लाना है C1 को, बाकी आपने कोई चेंज नहीं लानी। ग्लूकोज की कौन सी फॉर्म आपने लिखनी है बच्चे? बीटा फॉर्म। अल्फा के बजाय अब आपने लिखनी है बच्चे बीटा फॉर्म। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन द टू। लिंकेज वही है बच्चे, दैट इज C1C4, लिंकेज वही है C1C4, लेकिन कौन सी फॉर्म है? बीटा फॉर्म। तो बच्चे ऐसे लिंकेज यहां से यहां जाएगी। दिस इज द लिंकेज इन केस ऑफ व्हाट? इन केस ऑफ सेलुलोज। ऐसे आएगा बच्चे। इसी तरह इसको भी मिटाना पड़ेगा बच्चे, इसको भी मिटाना पड़ेगा, ये लिंकेज आएगी। और बीच में ऑक्सीजन एटम को लिखना नहीं भूलना। ऑक्साइड ब्रिजेस, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इसी को कहते हैं बच्चे। इसी तरह से ये कंटिन्यूटी रहेगी। सपोज करिए टर्मिनल है तो इसको रहने दे, टर्मिनल वाला एक फ्री होगा, बाकी बच्चे सारा आपका स्ट्रक्चर वैसा होगा। इसको आपको ऐसे देना पड़ेगा, कंटिन्यूटी में रहेगा। दिस इज द टर्मिनल ग्लूको यूनिट। एक ग्लूको यूनिट ऐसा होगा जिसका C1 बच्चे हेमी एस्टर फॉर्म में होगा, बाकी सबका ग्लाइकोसाइडिक फॉर्म में होगा। ग्लाइकोसाइडिक मतलब एस्टर लिंक, ये बच्चे हेमी एस्टर। अब इसमें देखिए लार्ज नंबर ऑफ ग्लूको यूनिट्स आर देयर, तो बड़ी बात आती है कि लार्ज नंबर में अगर एक ग्लूको यूनिट का C1 फ्री है, हेमी एस्टर फॉर्म में है, तो उससे बच्चे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सेलुलोज इज नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट, नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट, neither reduce tolerance reagent nor it reduce Fehling solution। तो ये था बच्चे स्ट्रक्चर सेलुलोज का। ये बच्चे देखें ना, ये देखिए कौन सी फॉर्म है, यहाँ लिखा हुआ है। इसमें हालांकि उन्होंने डायरेक्ट सीधा दिखा दिया है,
लेकिन याद रखना बच्चे, सही स्ट्रक्चर वही है जो मैंने लिखा, आपको दिखाया ना। इसमें अगर आप इसको ये लिखना भूल जाएं बीटा, तो एग्जामिनर गलत मतलब निकाल सकता है। उसमें ना भी लिखा हो, ऐसे आपने लिंकेज दिखा दी, ना भी लिखा है बीटा, अंडरस्टूड बीटा है। ठीक है ना बच्चे, क्योंकि हावर्थ प्रोजेक्शन में जो चीज नीचे लिखी जाएगी ओ एच, वो बिलो द प्लेन वो अल्फा होगा, और जो अबव C1 पे और जो अबव द प्लेन होगा वो बीटा होगा। X-ray analysis has shown that cellulose is comprised of several long linear chains, each containing 3000 or more glucose unit। अंदाजा लगाएं आप ना, 3000 या उससे ज्यादा ग्लूको यूनिट होते हैं एक एक चेन में। These chains lie side by side in bundles held together by hydrogen bonding, hydrogen bonding between one glucose unit and the other, C6CH2H and C2OH। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके बीच में बनती, एक चेन का C6CH2H, दूसरे का C2OH। ये परमानेंट लिंकेज हाइड्रोजन बॉन्ड है, जो आप बच्चे माइलोपेक्टिन में देखें, दैट वाज नॉट हाइड्रोजन बॉन्ड, दैट वाज द बॉन्ड बाय द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। जो माइलोपेक्टिन में थी C1 C6, वो बकायदा बच्चे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज अल्फा। तो माइलोपेक्टिन को आप ये नहीं कहें कि माइलोपेक्टिन की तरह इसमें भी क्या है, स्ट्रक्चर है सेलुलोज में, ऐसा नहीं। सेलुलोज की एक चेन में 3000 ग्लूको यूनिट्स है, और ये चेन्स कहता है लाई साइड बाय साइड, उनके बीच में जो अट्रैक्शन है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। So these ropes may further, these bundles get twisted together to form rope-like structure. These ropes may further grouped together to form fibers or may be embedded in lignin in case of food। ये है बच्चे आपका सेलुलोज का स्ट्रक्चर। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस हैं। तो ये था बच्चे आपके लिए, वाज ऑल अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स। तो मैंने कोशिश की बच्चे कि हम आपका जो कंप्लीट सिलेबस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो थ्रू ऑनलाइन मोड कंप्लीट कर दें, और होपफुली मैंने ये कंप्लीट कर दिया। दिस वाज माय लास्ट लेक्चर। तो थैंक यू फॉर बीइंग विद मी ड्यूरिंग कोरोना पैंडेमिक एंड दिस टाइम। कॉलेज खुल गए हैं बच्चे, नाउ यू आर गोइंग टू कॉलेज, ऑफलाइन क्लासेस का भी आप आनंद ले रहे हैं। तो कोई क्वेश्चन है बच्चे तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। वाइज ऐप ने हमारी बहुत हेल्प की बच्चे ड्यूरिंग दिस टाइम। जितना भी हम कम्युनिकेट कर पाए दैट वाज थ्रू वाइज ऐप। कोई बात आप मेरे से पूछना चाहते हैं बच्चे तो पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।